Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom subject Accountancy and Financial Management topic Proforma invoice and account sale. What is proforma invoice? Proforma invoice is a statement prepared by the consignor of the goods showing quantity, quality and price of the goods. Such proforma invoice is issued by the consignor to consignee regarding the goods before the sale actually takes place. ठीक है students, what is proforma invoice? Proforma invoice is a statement. It is a statement which is prepared by the consignor. ठीक है, whenever the consignor is sending the goods to consignee, okay, consignor is preparing the proforma invoice and it shows what? It shows the quantity, how much quantity the goods is sent by the consignor to consignee, what is the quality of the goods, ठीक है, and the price of the goods, right? Such proforma invoice is issued by the consignor to consignee regarding the goods. It is issued by the consignor to whom? Consignee regarding the goods before the sale actually takes place. Means whenever the consignee will sell the goods. Okay. So before selling the goods, the proforma invoice should be with the consignee. Okay. And this in this proforma invoice, the consignee will get the details of quantity, quality and the price of the goods, and based on this price only the consignee will sell the goods to the customer, right? So that is very important. Proforma invoice, see the proforma invoice is something like this. A specimen of proforma invoice is given below. Proforma invoice Mango Corner Bulser. See, Mango Corner is preparing this proforma invoice, means Mango Corner is consignor, ठीक है, and Mango Corner is sending some goods to केरी सेंटर इन सूरत. So केरी सेंटर इज कंसाइनी. अभी मैंगो सेंटर ने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या भेजा है मैंगो सेंटर ने, कॉर्नर ने 50 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, 50 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज 10 kgs ईच, 5000 रुपीज का, करेक्ट. देन फॉर सेंडिंग दिस गुड्स कंसाइनर को ये सारा खर्चा हुआ है. ट्रक का फ्रेट 150 रुपीज, इंश्योरेंस 30 रुपीज, ऑक्ट्रा 20 रुपीज, वेजेस 50 रुपीज और सन्ड्री एक्सपेंसेस, दूसरे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं वो है 50 रुपीज. तो टोटल खर्चा कितना हुआ स्टूडेंट्स? सॉरी, सम प्रॉब्लम. तो टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल expenses is how much? 5300. So now consignee will refer this proforma invoice and based on this invoice consignee will sell the goods to the customer, है ना, because जितना खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, correct? So this is the proforma invoice which the consignor sends to consignee before the sales takes place. Then next one is account sales. Account sales is a statement specifying the price at which the goods are sold, the commission earned by the consignee, the expenses incurred by the consignee on behalf of the consignment, and the net balance for which the consignee is liable. It is prepared by the consignee and does not have a fixed or specified format. मतलब अकाउंट सेल जो है ये कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी. ठीक है, किसके लिए बनाता है? कंसाइनर के लिए. नाउ अकाउंट सेल्स में कंसाइनी व्हाट ही इज मेंशनिंग, ही इज मेंशनिंग द टोटल नंबर ऑफ गुड्स व्हाट ही सोल्ड. ठीक है, वो गुड्स सोलने पे उसको कितना, उसने कितने में गुड्स सेल किया, एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड द गुड्स. देन फॉर सेलिंग दिस गुड्स व्हाट एक्सपेंसेस ही इनकर्ड, मे बी उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर किया रहेगा, उसने एडवर्टाइजमेंट किया रहेगा. ठीक है, या उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस किया, खर्चा किया होगा. तो व्हाट एक्सपेंसेस द कंसाइनी हैज बेयर फॉर द कंसाइनमेंट और फॉर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर, दैट एक्सपेंसेस आर मेंशन्ड इन अकाउंट सेल्स. थर्ड वन इज कमीशन. ठीक है, आफ्टर सेलिंग द गुड्स कितना कमीशन कंसाइनी का है वो कमीशन भी वो अकाउंट सेल में मेंशन करेगा. एंड द नेट बैलेंस फॉर विच द कंसाइनी इज लायबल. ठीक है, सी फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा. ठीक है, 10,000 रुपीज में से 1,000 रुपया उसने खर्चा किया, तो अभी कितना बचा? 9,000 रुपीज, करेक्ट. 9,000 रुपीज में से 2,000 रुपया उसका कमीशन, तो अभी कितना बचा? 9,000 minus 2,000 is how much? 7,000. So now consignee is liable to give only 7,000 to consignor, correct.
तो ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट में लिखी होती है या एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और इसी को अकाउंट सेल्स कहते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड बाय कंजाइनी फॉर कंजाइनर। ठीक है, सो इट इज प्रिपेयर्ड, सी लास्ट लाइन यहाँ पे है, it is prepared by the consignee and does not have a specific फिक्स्ड और स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसका कोई फिक्स या स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता है, कंजाइनी अपने हिसाब से अकाउंट सेल्स अपने तरीके से बनाता है। सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट सेल्स। देखो केरी सेंटर पे पहले मैंगो कॉर्नर ने केरी सेंटर को प्रोफार्मा इनवॉइस भेजा था, मतलब मैंगो सेंटर कंजाइनर था, केरी सेंटर कंजाइनी था। अभी कंजाइनी अकाउंट सेल्स बनाएगा, है ना, कंजाइनी अकाउंट सेल्स बनाएगा, अकाउंट सेल्स ऑफ 50 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज रिसीव्ड फ्रॉम मैंगो कॉर्नर बल्सर टू बी सोल्ड ऑन कमीशन। ठीक है, 50 बॉक्सेस उसने रिसीव किए थे, बेचा कितना उसने, 25 बॉक्सेस सेल किया फॉर ₹15, तो 3750 पैसा मिला। फिर उसने 15 बॉक्सेस सेल किया एट ₹17, तो उसको 2550 पैसा मिला। तो टोटल पैसा उसने कितना रिसीव किया, 6300। ठीक है, 6300 में से 50 रुपीज़ का ये केरी सेंटर कंजानी ने 50 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया, कस्टमर को 315 रुपया डिस्काउंट दिया, 630 रुपया उसका कमीशन खुद का हो गया, और दूसरा कुछ 5 रुपया उसने खर्चा किया। तो टोटल खर्चा उसको कितना हुआ, 1000 रुपीज़। तो 6300 में से माइनस करेंगे 1000, तो अभी कितना पैसा कंजाइनी देगा कंजाइनर को, 5300। ठीक है, अभी ये 5300 में से 3000 रुपीज ऑलरेडी कंजाइनी दे चुका है कंजाइनर को, एडवांस पेमेंट किया है। क्या किया है, एडवांस पेमेंट ऑलरेडी उसने कर दिया है। तो अभी कितना पैसा बचा बच्चों, 2300। कितना बचा, 2300 रुपीज इज कंजाइनी इज लेबल टू पे टू कंजाइनर। ठीक है, एंड नाउ चेक नंबर 3003 एनक्लोज। तो अभी इसने 2300 रुपीज का एक चेक बना दिया और कंजाइनर को भेज दिया। तो अभी उनका बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस इज नील। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस एंड व्हाट इज अकाउंट सेल्स। थैंक यू।